Yeah, good morning, Abhinesh. Good morning, Menu Singh. Good morning, Ilakshi. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Shall we start, sir? Yeah. Children have joined. They have started joining. Yeah. So, good morning, everyone. I, Dr. Meenu Singh, Principal Project Associate of Vigyan Jyoti, welcome you all for this career counseling session under Vigyan Jyoti. As we all know that the Vigyan Jyoti program is a flagship initiative of DST and is running successfully in collaboration with NBS in 100 districts all over the country. This program is a huge step in the direction of empowering girls in STEM field. Dear children, I'm sure that this career counseling session will introduce you to the world of work in the STEM field and also provide insight into the future career prospects. So listen carefully and attentively. Today we have with us Abhinesh Anand, Territory Business Head Fiji. He is an alumnus of National Institute of Technology, Surat, and has 7 years of corporate experience with renowned companies. Abhinesh prepared for GMAT and got an opportunity in IIM Indore to pursue his MBA. During his stint at IIM Indore, he was a placement committee head. He is a principal speaker in Fiji and currently heads the admission department of Delhi NCR region. His dedication and hard work makes him an indispensable member of any organization. Before handing over the session to Abhinesh sir, I would request T. Gopalakrishna sir, Deputy Commissioner. A very good morning to all of you. Abhinesh, am I audible? Yes, sir. You're audible. Yeah. Thank you, Dr. Menu Singh, for having started the program with such nice words. And dear children, it is a wonderful opportunity for all of you to have a lot of inputs to verify your own thought processes in order to get clarity for making a decision when you come to class 11 and 12. And after completion of class 11 and 12, which is the area which is very attractive to you, not only being attractive, also what are the qualities and aptitudes that you need to have in order to match yourself with that kind of career, all that you will be able to get clarity after listening to this wonderful session. As Dr. Meenu Singh has rightly said, that the scholars, the students who have come into the fold of Vigyan Jyoti or the lucky lot, you have been specially chosen, thinking that if we give you a little bit of support, that support will make you empowered to take very good decisions about your career in the future. So taking a decision for the career is very, very important in anybody's life, because once you start working with the job which you are passionate about, which you like so much, which you enjoy doing, that means it is enjoyment unlimited. So it is your career and also enjoyment. This is a very, very important thing that should happen in anybody's life. So from that perspective, a career counseling session like this is very, very important. And I'm very happy that we have Abhinesh Anand, who has got very rich experience in this particular area, who has met thousands and thousands of children like you, who also has made a very in-depth analysis of the various thought processes that children will be undergoing during your age, and how those thought processes should be directed towards your own choice line. And that is what is going to happen today. So I request all of you that you should be very focused. Whatever doubts you get, those doubts you should be able to post in the chat box, because the number is so big that we may not be able to allow each one of you to talk in this particular session. But you have the freedom to write down in the chat box
what you want to get clarified, what is your doubt, and what are the other additional inputs you want, and all that. Even after the session is over, you can send us emails to Vigyan Jyoti. We will be able to connect you with Abhinesh Anand for any further clarifications that you require. So I wish you very all the best. I want to congratulate all the team members of Vigyan Jyoti at NVS headquarters, regional office, and at school level. A program like this will become successful only when so many people work at the back end. Today, you are all just coming and listening to the presentation, but so many people have worked in the back end for making this program a reality. So I take this opportunity to congratulate each one of the members who are associated with this counseling session, which is going to be conducted by our subject expert today, Avinash. And I wish that this is just a beginning for a very long journey together for being a helping hand to all these girl students. So thank you, Meenu Singh, for giving me this opportunity. I wish all the best to Abhinesh Anand for making this program a grand success and to remain with us in the journey. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your valuable words and guidance. I request Abhinesh, sir, to take over the session, and so that and children, please listen to him very carefully and attentively. Sir, please. Thank you. Thank you, Honorable Sir. Thank you, ma'am, for such a cordial welcome. Obviously, you could see that eagerness, that even before allowing ma'am to say thank you, I was right there and I wanted to start my conversation or start my presentation. So this is going to be a great opportunity for all of you. Let me be very clear with all of you. As sir has lightly mentioned, there are a lot of people who were involved in this exercise. They have taken those painstaking efforts, काफी मेहनत की है, और उसके बाद जो है हम इस जगह पे आए हैं जहाँ पे हम आपके लिए कुछ कर सकें, जिस तरीके से आप लोग जो हैं, आपका जो जीवन है वो और सफल हो सके, जैसा आप कर रहे हैं उससे भी और अच्छा हम कर सके। तो उसको हम ध्यान में रख के सबसे पहले एक सवाल जो है मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आई होप आप सबने नाश्ता किया है और आप एकदम एनर्जेटिक हैं पूरे सेशन के लिए। हाँ ना, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वो एनर्जी चाहिए होगी अगले आधे 1-1.5 घंटा, जितने भी टाइम हम आपके साथ में रहते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आ सकेंगी जब आप आगे कोई अपना प्रोफेशन, अपना करियर, जो भी आप डिसाइड करोगे आपके आगे क्या करना है, वो आपको बहुत फायदा कर सकती हैं सही डिसीजन लेने में। सो सबसे पहले मेरा आप सबसे ये सवाल है, आप लोग सब 12th में हैं, तो अब 12th के बाद आपका क्या प्लान है, आपको क्या करना है 12th के बाद? आप सब 12th साइंस में हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको आपने कुछ प्लान किया है, आपको क्या करना है, या अभी तक आप क्लियर नहीं हो। आप लोग ओके, मेडिकल, नीट मेडिकल, ओके, साइंटिस्ट, एसएसबी, नीट, बी फार्मा, ठीक है। एक रफली मुझे आइडिया आ गया है, थैंक यू, मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्सेस पढ़ लिए हैं। मुझे एक टेंटेटिव आइडिया आ चुका है कि मोस्टली जो है अराउंड 30 से 40% बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमें जो है इंजीनियरिंग करना है। अराउंड 20 से 25% बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं हमको मेडिकल में जाना है, और बाकी 40 से 50% वो बच्चे हैं जो आइदर सोच रहे हैं हमें इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना है, कुछ और करना है, या वो क्लियर नहीं है। अगर हम सब बच्चों को देखें, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे हैं, तो मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिसमें से 30-40% बच्चे या 25 से 30% बच्चे वैसे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग सोचा है करने को। अराउंड 25 से 30% बच्चे वो होंगे जो नीट मेडिकल सोच रहे हैं, और रिमेनिंग 30-40% या 50% बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, या तो वो सोच रहे हैं हम सिविल सर्विसेज करेंगे या हम कोई डिफरेंट सा फील्ड है उसमें हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अभी इस सवाल को हम यहीं पे रखते हैं, इसका जवाब हम धीरे धीरे जो है इसका जवाब हमें मिलेगा जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है एक बच्चे की। 10 से 11 साल पहले वो बच्चा जो था एक छोटी सी गांव में रह रहा था, छोटी सी जगह में रह रहा था। अब 10 साल पुरानी बात करें तो उतने ऑप्शंस नहीं थे, ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। उस टाइम पे बस 2 ही चीजें होती थी, या तो पेरेंट्स कहते थे कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, या कह देते थे
कि आप जो है मेडिकल में चले जाइए। तो यही दो चीजें जो है 10 साल पहले ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि या तो आप इंजीनियरिंग कीजिए या मेडिकल कीजिए। और उस टाइम पे वो जो बच्चा था वो क्लियर नहीं था कि उसको क्या करना है। वो भी उसी रेंज में आता है जो कि यहाँ पे 40 से 50% बच्चे सोच रहे हैं, 30 से 40% बच्चे सोच रहे हैं। या तो उनको सिविल सर्विसेज जाना है, एसएसबी करना है, साइंटिस्ट बनना है। वैसे ही वो भी थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं पता नहीं क्या करना चाहता हूँ, पर उसको एक चीज पे भरोसा था, जो भी काम उसको दिया जाएगा वो उसको पूरी सिंसियरिटी के साथ करेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ करेगा। वो उत्साह उसमें दिखाएगा कि वो कार्य को वो अंजाम तक ला सके। तो ये सोच के उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अभी 11वीं में हूँ, 12वीं में हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन सही होना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि देखिए, हमारे साथ अभी तक हमने जैसे देखा है, आप जैसे भी पढ़ाई में रहे हो, ये रहे हो, 10th के बाद जो है आपको साइंस ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो है थोड़ा ध्यान या आपका जो इंटरेस्ट है थोड़ा इन सब चीजों में रहता है जो थोड़ी साइंस से रिलेटेड है। तो उसने साइंस ले लिया। फिर 12th के बाद उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इंजीनियरिंग करूं, मेडिकल करूं। तो इवेंचुअली उसने अपने पेरेंट्स की बात मान के उसने इंजीनियरिंग में शुरू कर दिया। अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। कहानी इतनी नहीं है कि उसे इंजीनियरिंग में जाना था, वो इंजीनियरिंग में चला गया, उसने पढ़ाई कर दी। पर एक चीज उसको पता था कि जिस काम को मैं सोचूंगा करने को वो मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। तो इंजीनियरिंग के बाद जब वो जॉब में गया, उसके बाद जब उसने सोचा उसे आगे और पढ़ाई करनी है, ये सब चीजें जो है वो अपने आप में सुधार लाता रहा और अभी तक जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि वो उस अंजाम तक पहुंच सके। वो अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंचा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी किसी और की नहीं है। ये कहानी उसी इंसान की है जो अभी आपके सामने आपको बताना चाहेगा कि आपको कौन से करियर डिसीजंस लेने चाहिए। ये कहानी मेरी है। मैंने इसी तरीके से शुरुआत की थी। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं भी थोड़ा सा क्लियर नहीं था। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते थे, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते थे, तो मुझे पता था कि मैं जो भी चाहूँ वो करूंगा और अच्छे से कर लूंगा। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई बार हम उस मोड़ में आ जाते हैं जहां हमें नहीं पता होता हमें क्या डिसीजन लेना है। क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए, क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी डिसीजन लो, उसके बाद उसमें पीछे मुड़ के मत देखिए कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया। उसको अच्छे से कीजिए और आपको सफलता मिल ही जाएगी आखिर में जाके। एक चीज और, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको कहावत सुनाना चाहूंगा ताकि हम सेशन शुरू करें, एक अच्छे नोट पे शुरू करें, एक अच्छे कोट से शुरू करें। तो वो इस तरीके से है कि हर सुबह अफ्रीका के जंगल में, अगर आप अफ्रीका के घने जंगल देखोगे तो उसमें हर सुबह एक हिरण जागता है। उस हिरण का बस एक ही काम होता है कि उसको जो है सबसे धीरे चलने वाले जो लायन है, जो शेर है, उससे तेज भागना है। उसी जंगल में हर सुबह एक शेर जागता है और उस शेर का बस एक ही काम होता है कि मुझे जो है सबसे धीरे चलने वाले हिरण जो है उससे तेज भागना है ताकि मैं भूखा ना रहूं। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर हो या हिरण हो, हर रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज आपको पूरी सिंसियरिटी के साथ वो करना पड़ेगा जो आपने सोच रखा है अपने लिए। और अगर आप करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होनी पक्की बात है। तो इससे शुरू करते हैं कि ये जो सेशन है हम किस तरीके से क्या करेंगे। तो मैं आपको एक पूरा फ्लो बता देता हूं। हम सबसे पहले बताएंगे कि बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। इनकेस अगर हम बात करें कि बच्चे 11वीं में हैं, 12वीं में है या 12वीं के बाद कौन सा करियर लेना चाहिए, सबसे पहली चीज ये आती है प्रॉब्लम कि कौन सा करियर है जो अच्छा है हमारे लिए, किस करियर में हम अच्छा कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने ये करियर ले लिया, अब इसमें आगे स्कोप क्या है, जॉब का क्या स्कोप है, क्या इससे हमें कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैडम ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये प्रोग्राम का जो मेन फोकस है स्टेम। तो स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये चार चीजें जो है, जो बेसिक पिलर है आपका, आप कह दीजिए कि चार जो आपका पूरे के पूरे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये चार खंबे जो हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप सोच सकते हो। अब हम उससे पहले शुरू करें, मैं एक सिंपल से वोटिंग लेना चाहता हूं। अराउंड 120 पार्टिसिपेंट्स हैं।
मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोग जो है डायरेक्टली स्लाइड्स देखना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि मैं पहले वीडियो दिखाऊं ताकि आप वीडियो को जो है एंजॉय कर सकें और उसके बाद हम स्लाइड्स में जाएं, या आप चाहते हो पहले मैं स्लाइड्स दिखा दूं और वीडियो लास्ट में दिखाऊं? तो मुझे बताइए कितने जने हैं जिनको पहले वीडियो देखना है? आप हाथ रेस कर सकते हो। अच्छा, बहुतों ने वीडियो लिखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम वीडियो ही चला देते हैं। बहुत लोग हैं जो वीडियो कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो चला देता हूं आप सबके लिए, आप उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलाने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है, ये आप उस तरीके से मत देखिए कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं या हम किसी कॉलेज के बारे में कह रहे हैं। इस वीडियो को आप सिर्फ ये देखिए कि ये वीडियो एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिखाया जा रहा है वीडियो। तो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या आखिर ये वीडियो आपको बताना चाहता है, क्या ये वीडियो आपको किस तरीके से कि आप डिसीजन ले सकें। तो मैं आपको वीडियो चला के दे देता हूं, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर कर लेता हूं स्क्रीन। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कहा था उनको इंजीनियरिंग में जाना है? क्योंकि ये वीडियो जो है ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो हाथ एक बार रेस कर लीजिए तब तक आप, मैं जब तक ये खोल रहा हूं। कैरियर इन होटल मैनेजमेंट सब बात करेंगे हम। 1 सेकंड, यस। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूं। आपको एक बार अगर दिख जाए तो आप बता देना मुझे। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैम, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट, या आप मुझे बता दें कि सबको स्क्रीन, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? कोई भी? Yes, sir. ठीक है, शुरू करता हूं मैं। आप ऑडियो भी अगर नहीं सुनाई दे कहीं पे तो आप मुझे बता देना, ताकि मैं उसकी सेटिंग्स देखूं। चलिए, आप इंजॉय। हेलो मैम, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके ओके, ठीक तूने बंद आंखों से देखे थे ख्वाब जो है जुबां बिना तेरे दिल को फिर भी है याद वो। तूने बंद आंखों से देखे थे ख्वाब जो है जुबां बिना तेरे दिल को फिर भी है याद वो। है रास्ता तुझको पता, अब ढूंढ ले मंजिल के निशान। खुद बना ले जिंदगी, मत समझ ये भाग है ना खत्म जो हुई वो तेरे अंदर की आग है। आग है, आग है, आग है, आग है। जब पंख मिले और देखा आसमान में, ना कोई खबर थी होगा क्या उड़ान में। तूने सांस भरी, तू आगे बढ़ा, उस डर के परे तू फिर भी उड़ा। अब नजर ना हटा, आने वाला मकाम है। वक्त की कलम को तो लिखना तेरा ही नाम है।
आएगा जिसका इंतजार था, दिल जिसके लिए यूं तेरा बेकरार था। सब मुश्किलें तुझे छोड़ कर चुप जाएंगी उस मोड़ पर, और करे तू बयां जो तेरी अपनी किताब है, ये जहां दोहराएगा जो सिर्फ तेरा ही ख्वाब है। ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब है। हो, 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 तूने बंद आंखों से देखे थे क्यों? ओके, तो वीडियो कैसा लगा सबको? चलिए, अब वो जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि वो 40-50% जो बच्चे हैं जो क्लियर नहीं हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग कितने बच्चे थे या कितने इनमें से ऐसे थे जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं। एक राइटर है जो चेतन भगत थे, बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज में चले गए हैं, बहुत सारे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में चले गए हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जिन्होंने अपनी कंपनी खोल दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आप पढ़ाई करने के बाद भी क्लियर नहीं होते कि आपको क्या करना है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि आप जो भी चाहें उसको अगर आप अच्छे से करोगे, जो भी आपने सोच रखा है आपको करना है, तो आपको सफलता पक्का मिलने ही वाली है, सफलता प्राप्त होगी आपको पक्का। तो इस चीज को ध्यान रख के अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं कि क्या क्या जो है, आप अगर साइंस के बच्चे हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहो, किस फील्ड में आप जाना चाहो, तो वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जस्ट अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ओके, तो जैसे इस सेशन का जो टॉपिक था करियर काउंसलिंग, कि आपके लिए कौन सा करियर सही होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो उसको हमने ध्यान में रख के ये स्लाइड्स बनाई हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, जो मैं आपको बता रहा था कि हर सुबह अफ्रीका के जंगल में एक हिरण जागता है और हर सुबह उसी जंगल में एक शेर भी जागता है। हिरण जागता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, वो मरे ना, और शेर जागता है ताकि वो हिरण को खा के अपनी भूख मिटा सके। तो फर्क नहीं पड़ता आप शेर हो या हिरण हो, जब भी सुबह होगी आपको भागना शुरू करना पड़ेगा, आपको अपना सर्वाइवल ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ही आप 12th में गए, जहां भी आप काम करने जाओ, आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको जो है उसी सिंसियरिटी से, उसी डेडिकेशन और कमिटमेंट से काम करना होगा, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। अब 12th साइंस के सब बच्चे हैं, और जो कि हमारा टॉपिक था, मैंने आपको कहा था स्टेम, जिसका मतलब हुआ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये 4 डिफरेंट फील्ड्स होते हैं जो 12th साइंस का बच्चा सोच सकता है कि उसे आगे क्या करना है, या साइंस में जाना है तो उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी में जाना है तो क्या क्या है, इंजीनियरिंग में क्या क्या स्कोप है, और मैथमेटिक्स में क्या क्या स्कोप है। लेकिन इस चीज को अभी हम फिर थोड़ा सा साइड में रखते हैं, और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी कहानी बताई कि मैं जब 12th में था या मैं जब 10th में था, मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी मुझे क्या करना है। वो क्लैरिटी क्यों नहीं थी, किस वजह से नहीं थी, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमें नहीं पता होता हमें क्या करना है। 90% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करियर चूज करना है, किस जगह जाना है।
तो इस तरीके से हम कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम क्या करें आगे। क्यों ऐसा होता है जैसा मैंने आपको बोला, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिर्फ शुरू के 4 से 5% ही बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने करियर में जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, जो भी उन्होंने अपने लिए सोचा होता है, और आप उन गिने हुए 3 से 4% में से हैं। तो आपने पहला जो है ऑब्स्टेकल, पहला जो आपका सबसे मुश्किल स्टेप है, वो आपने ऑलरेडी पार कर लिया है, जिसकी वजह से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपस में बात कर पा रहे हैं। तो वो 3 से 4% में यहाँ पे जितने भी सब बच्चे आए हुए हैं, वो सारे उस 3 से 4% में हैं कि उन्हें जो है जहां भी जाना है, जो भी करना है, वो इतने अच्छे से करेंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में। दूसरी चीज, अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, उस कंपटीशन में सबसे आगे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेस जो है सबसे आगे की है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम आप कह सकते हो कि इस तरीके से बनाया गया है कि आपको जो है एक एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है कॉलेजेस में, आपको एक सीट अलॉट होती है। तो जिस पूरे के पूरे सिस्टम की बुनियाद आपके एग्जाम के ऊपर है, वहां पे आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, आपको अपने आप को और अच्छे से तैयार करना है, ताकि वो एक एग्जाम में आप जो है अपना बेस्ट दे सकें। तीसरी चीज, यहाँ पे आप गौर करेंगे हर शब्द को, तो मैंने लिखा है लिमिटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खेलना नहीं है, खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी के टाइम पे जहाँ पे आपको पता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर जना इस रेस में दौड़ रहा है, हर जना चाहता है कि वो बेस्ट कॉलेज से पढ़े, हर जना चाहता है कि उसे बेस्ट जॉब मिले, हर चीज बेस्ट मिले। उस कंपटीशन में आगे रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वो चीजें जो हैं वो आपकी खेलकूद से रिलेटेड है, आपकी हॉबीज से रिलेटेड है। इसके लिए भी एक अलग डिस्कशन हम करेंगे कि ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको ये नहीं करना है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के टाइम पे, अभी जब आप जानना चाहते हो कि किस कॉलेज में पढ़ाई करें, कौन से फील्ड हम चूज करें, किस तरीके से हम जो है अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकें, उसके लिए आपको अभी थोड़ा फोकस पढ़ाई में करना होगा। नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ होशियार बच्चे, सिर्फ समझदार बच्चे, सिर्फ टॉप 1 to 5% वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनको इसीलिए मिलता है क्योंकि उनके में वो कमिटमेंट होता है, वो उतने डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ अपना काम करते रहते हैं। ये चीजें आप हमेशा याद रखना। सिर्फ समझदार या सिर्फ आप ये कह सकते हो कि होशियार बच्चा, या सिर्फ ऐसा करने से कि आप जो है आपको ज्यादा स्मार्ट हो बाकी लोगों से, उससे आपको सफलता सिर्फ नहीं मिलती। आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप हर मुसीबत का सामना करेंगे। इनएबिलिटी टू कोप अप विद द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बोला, आप 10th में जब थे, अभी आप सब ठीक है 12th में हो, लेकिन जब आप 10वीं में थे और 10वीं से 11वीं में गए, तो आपको अचानक से रियलाइज होगा कि पढ़ाई एकदम से कितनी डिफिकल्ट हो गई है। जो चीजें हमें पहले जिस तरीके से हम समझते थे, अब अचानक से 11वीं में आके वही कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से बदल गए हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के हो गए हैं, और वो डिफिकल्टी जो है वो सिर्फ आपको नहीं होती, वो सब बच्चों के लिए होती है। 10 साल पहले जब मैं कर रहा था, मुझे भी वही कठिनाइयां से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए मैं और कंफ्यूज हो गया था। अगर मैं पूछूं आप लोग क्यों कंफ्यूज हो, उसका एक रीजन ये भी है कि आपकी अचानक से जो है मुश्किलें बढ़ गई और आपको लगा क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या मुझे इधर ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मैं नीट के लिए हूं बना हुआ, या क्या मैं इंजीनियरिंग के लिए बना हुआ हूं। इस तरीके से आप खुद को जो है डाउट करने लग गए, आप श्योर नहीं थे कि आपको क्या करना है, और ये चैलेंज हर बच्चे को होता है। 10 साल पहले मुझे था, अभी के टाइम पे आपको है, 10 साल बाद आपका जो दूसरा जनरेशन आएगा उनको भी यही मुसीबत होगी कि 10वीं से 11वीं में एक सडन जंप आता है, एक लंबी छलांग लगानी पड़ती है। लास्ट, क्योंकि आपको टॉप 1 to 5% में रहना है, आपको कभी कभी अपना स्ट्रीम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको अपना जॉब जाने देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ कुछ बच्चे हैं जिनको उनका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, उनका मनपसंद फील्ड मिलेगा, उनका मनपसंद जॉब मिलेगा। इसीलिए आप सोचते हो कि इसको छोड़ के मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, किसी और चीज में और बेहतर हो जाता हूँ।
इस तरीके से आपके मन में ख्याल आने लगते हैं। ये सिर्फ मैंने 6 लिखे हैं मुश्किलें जो बच्चों के सामने आती हैं, पर मैं आपको विश्वास देके बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ 6 मुश्किलें नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं। अगर पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको किस चीज की टेंशन है, आप उनको बोलिए कि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 चीजें हैं। लेकिन दूसरी चीज इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कमिटेड हो कि आपको क्या करना है, आपके में वो डेडिकेशन है, आपके में वो सिंसियरिटी है, तब आप जो सोचोगे आपको करना है वो आपको मिल जाएगा। ये सारे चैलेंजेस थे जो कि मैं दिखाना चाहता था। अब मैं जाता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसका हम बताएंगे आपको कि आपने अगर साइंस लिया था तो आपने क्या सही डिसीजन लिया था। सबसे पहली बात, अब आप ले चुके हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही लेना चाहिए था या कॉमर्स आर्ट्स जो है, हर फील्ड का जो है एक ब्यूटी होती है, हर एक स्ट्रीम की। आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, हर स्ट्रीम की ब्यूटी होती है और वैसी ही ब्यूटी साइंस स्ट्रीम की भी है। तो वो ब्यूटी के बारे में अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उन बच्चों के लिए जो कि साइंस अभी ले चुके हैं। सबसे पहली चीज, 12वीं साइंस के बाद आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि आप क्या क्या करना चाहते हो, मुझे सिर्फ अब 2 जवाब नहीं मिले थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। मुझे कई सारे जवाब मिले। मुझे एसएसबी दिखा था, मुझे यूपीएससी दिखा था, मुझे और साइंटिस्ट दिखा था, बहुत सारे जवाब थे। और उसी तरीके से इस समय में 12th साइंस के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ मेडिकल करना चाहिए, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग करना चाहिए। ये मेरी इच्छा भी नहीं है आपको किसी को फोर्स करने के लिए कि आपको ये करना चाहिए। आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप अपना डिसीजन ले सकते हो अब। बट एक चीज बस ध्यान रखना कि जो भी डिसीजन आप लो, उस डिसीजन को पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कि क्या वो सही डिसीजन था, क्या वो गलत था। मैंने एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन में अब मैं आगे अपने आप को और इंप्रूव करूंगा और अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा। उसी तरीके से आपको भी उस चीज का ध्यान रखना है। आपने 12th साइंस लिया है, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास बहुत करियर ऑप्शंस हैं, 1 या 2 नहीं है, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शन लो, उस ऑप्शन को अच्छे से आप जो है आगे फॉलो करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं? उसका एक रीजन है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके दरवाजे पे खड़ी हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे बैंक में आप जा सकते हो, सिविल सर्विसेज किसी ने बोला मुझे, उसके सिवा राइटर बन सकते हो। आपने देखा कि हमने जो वीडियो दिखाया, बहुत सारे उन्होंने कंपनी शुरू की, तो लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, और सबके सब इंजीनियर्स थे, सबके सब ने 12th साइंस लिया होगा, तो उसके बाद वो काफी कुछ कर सके थे। आप डाइटिशियन बन सकते हो, आप स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और दूसरी चीज है कि जो जॉब ढूंढना है, उसका मिलने की जो आशाएं हैं बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको जॉब मिल सकता है इजीली, और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे 2 ऑप्शंस थे, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वैसे ही बहुत सारे बच्चों ने साइंस लेना शुरू कर दिया है। तो उस वजह से बहुत सारे जॉब्स आ चुके हैं जो कि उन बच्चों को लेते हैं जिन्होंने साइंस किया होता है। तो आपके पास बहुत सारे जॉब्स हैं, और दूसरी चीज है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन है, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आपको देखना है आपके लिए सही ऑप्शन क्या है, बस वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके लिए आपके टैलेंट के हिसाब से कौन सा करियर सही है, वो आपको डिसाइड करना है। कोई अगर बच्चा एकदम शांत है, ज्यादा बात नहीं करता है, थोड़ा सा अपने में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलना पसंद है उसको या लोगों के साथ चीजें डिस्कस करना उसको पसंद है, ऐसे बच्चा अगर, तो आप सोचिए कि वो किसी सेमिनार में मेरी तरह ही अगर कोई सेशन में चला गया और उसे सेशन देना होगा, तो उसको कठिनाइयां होंगी, क्योंकि वो उतना घुल मिल के बात नहीं करता, लोगों से सबको घुल मिल के नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चे के लिए कोई और करियर ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए करियर नहीं, उसके लिए भी करियर्स हैं बहुत सारे, बट उसके लिए इस टाइप का करियर, सेल्स जैसा एक करियर होता है जहां पे आपको कुछ बेचना होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़े बड़े वो लोग सेल्समैन रखते हैं, अलग अलग नाम से कहते हैं, कि कोई सेल्समैन कहता है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट कहता है, कोई कमर्शियल्स कहता है। तो ये सब के लिए आपको थोड़ा सा बातें करनी आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, लोगों से मिलजुल के रहना, एक रिलेशनशिप बनाने हैं,
उस टाइप का कोई है तो उसके लिए ये फील्ड, ये करियर सही हो सकता है। तो आप अपना हुनर देखिए कि आपका हुनर क्या है और उसके हिसाब से आप अपना करियर चूज कीजिए। अब जैसे मैंने बोला क्लास 12th साइंस अगर आपने लिया है तो आपके पास ये सारी चीजें हैं। तो एक सेकेंड, तो उन सब चीजों में ये है कि आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये 4 हम ऑलरेडी फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं कि क्लास 12th के बाद आप साइंस भी ले सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप मैथमेटिक्स में भी जा सकते हैं। और आखिरी में अगर हम जाएं तो वो है कि सबसे ज्यादा अभी भी अगर मैंने जब पूछा बच्चों से कि आपको क्या करना है, तो मुझे लगभग 50% बच्चों ने, जबकि 50 से भी ज्यादा थे, 60% बच्चों ने ये कहा कि उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना। बहुत क्लियर थे वो कि हमें या तो इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है। तो ये 2 करियर ऑप्शन थे जो अभी भी 10 साल पहले ये 60% की जगह पे 70-75% था, अब ये थोड़ा सा कम हो गया है, अब 60% हो गया। धीरे धीरे हो सकता है 10 साल बाद वो 50% हो जाए, 40% हो जाए, और बाकी के जो फील्ड्स हैं जो कि साइंस में आए हैं वो और भी बेहतर हो जाए और लोग उसमें जाना शुरू कर दें। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से आपने जो साइंस लिया है, जो मैंने कहा आपने सही डिसीजन लिया है, इसमें कोई गलत डिसीजन नहीं है। बस आपको अपने हुनर के हिसाब से अपने लिए एक सही फील्ड चूज करना होगा, एक सही करियर चूज करना होगा। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस। जो हमने बोला है 4 पिलर्स की बात की है जो कि एक बुनियाद बना रहे हैं 12th साइंस के बच्चे के लिए, कि आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले हम पहला जो है पिलर लेते हैं या पहला खंबा लेते हैं जो कि है साइंस। तो आप प्योर साइंस में क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, मैं सारे कोर्सेज आपको बताऊंगा और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बेनिफिट होगा। ये सारे कोर्सेज अगर आप लेते हो तो क्या फायदा है, हमें क्यों जाना चाहिए प्योर साइंस कोर्सेज में, क्यों ना हम सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में सोचें, या क्यों ना हम सिविल सर्विसेज के बारे में सोचें या किसी और चीज के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं। अगर आप ये सारे कोर्सेज लोगे तो आगे आपका करियर ग्रोथ क्या है, आपका करियर स्कोप क्या है। तो ऑप्शंस अगर हम कहें तो एक जियोफिजिस्ट करके है, मेटलर्जिस्ट करके है, रिसर्च साइंटिस्ट है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर बहुत डिटेल में गए तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मेरा पूरा जो पूरा मकसद है इस सेशन को आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, वो ये है कि आप क्या क्या करियर चूज कर सकते हो। ठीक है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, नेचर कंजर्वेशन ऑफिसर है, आप मेडिसिन में जा सकते हो, सर्जरी में जा सकते हो, डेंटल साइंस, फिजियोथेरेपी, बायोकेमिस्ट, वेटरनरी साइंटिस्ट, डाइटिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, नर्सेस, प्रोफेसर्स और टीचर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, बहुत सारे फील्ड्स हैं। अब इसमें से कोई भी मैं एक ले लेता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि किस तरीके से पिछले 11 से 12 साल में क्या ग्रोथ हुई है उस फील्ड में। मैं आपको स्पीच थेरेपिस्ट एक ले लेता हूं। क्यों मैं बोल सकता हूं इस फील्ड के बारे में, क्योंकि मेरी जो खुद की बहन है उसने भी स्पीच थेरेपी की थी, मुझसे 1 साल बड़ी है। उन्होंने 10 से 11 साल पहले क्लियर नहीं थी कि उन्हें क्या करना है, तो उन्होंने सोचा कि चलो घर वालों से बात की, सबसे बात की, और उन्होंने कहा चलो स्पीच थेरेपिस्ट आप बन सकते हो, आप स्पीच थेरेपी सीख लीजिए। अब उस टाइम पे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सिर्फ 5 से 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और 8 से 10 प्राइवेट कॉलेज थे। ये है आपकी 2007-8 की बात है। अभी का टाइम देखोगे आप तो 13-14 साल हो गए हैं। तो 13-14 साल पहले सिर्फ 5 से 6 कॉलेजेस थे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, और 8 से 10 कॉलेजेस थे जो कि आपके प्राइवेट कॉलेज थे। टोटल बच्चे कितने लेते थे वो मुश्किल से बच्चे आपके लेते थे 100 से 150 के बीच। यही चीज 14 साल बाद 5 कॉलेज से बढ़ के 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, और आपके 10 प्राइवेट कॉलेज से बढ़ के 40 प्राइवेट कॉलेज हो गए। इस तरीके से ग्रोथ आई है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, हर चीज में जो है काफी ज्यादा जो है ग्रोथ हो गई है हर फील्ड में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल ही करेंगे, ऐसा नहीं है हर बच्चा इंजीनियर बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब बच्चे जो हैं हर जगह पे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ग्रोथ है, बहुत करियर ऑप्शंस है। आगे आपका जो करियर है बहुत अच्छे से डिफाइन हो सकता है, आप जो भी डिसाइड करो आपको करना है।
अब अगर आपने इनमें से कोई भी फील्ड चूज किया, सपोज आप कहते हो कि आपने मेडिसिन ले लिया या सर्जरी में गए, तो MBBS, पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। जो आप बैचलर्स करते हो, जो मैंने यहाँ मेडिसिन और सर्जरी लिखा है, वो जो है उसे MBBS कहते हैं, जो कि बच्चे तैयारी करते हैं नीट के बेसिस पे कि आप MBBS कॉलेजेस में जाते हैं और आपकी MBBS की तैयारी शुरू होती है। इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टेट और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाने की। बहुत सारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देख लीजिए, आपके बहुत सारे और ऐसे कॉलेजेस हैं। आप को आगे नासा में भी जाना है तो उसके लिए भी आप प्योर साइंस कोर्सेज कर सकते हो, आपके एस्ट्रोनॉमी में किया जा सकता है। अगर आपको यहीं पे इसरो में जाना है आपको, तभी आप कर सकते हो वो वाले कोर्सेज जो कि आपको एस्ट्रोनॉमी में आपको और अच्छा बनाएंगे। आपको इनकेस अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, वो सारी चीजें भी हो सकती है। तो जितने भी आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, सेंट्रल लेवल पे हो, उन सब में प्योर साइंस कोर्सेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा, जैसे मैंने पूछा कि हाँ मेडिसिन किसको करना है, तो मेडिसिन भी एक प्योर साइंस कोर्स ही कहा जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक रेलिवेंट ऑप्शन होता है, बहुत ही ज्यादा एक प्रोमिनेंट ऑप्शन होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली। बहुत अच्छा स्कोप है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ाई तो आपको हर चीज में करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई चीज में आप बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हो, तो मैं आपको ये चीज अभी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कुछ बच्चे अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको बहुत समय के बाद वो सफलता प्राप्त हो रही है, और कुछ बच्चे अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं लेकिन उन्हें फिर जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है उस सफलता में पहुंचने के लिए। सो मेहनत सबको करनी है, सबके नाम पे बराबर सी मेहनत है। बस बात यह है कि कौन किस समय मेहनत करता है। तो मेडिसिन में आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई होती है उसमें, लेकिन अगर आप पहले मेहनत कर लोगे तो बाद में आपका जीवन जो है सुखी रहेगा और आप सफल रहोगे अपने करियर। आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं आपकी, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कि आजकल प्योर साइंस जिन्होंने भी किया होता है, इनमें से कोई भी कोर्सेज हैं, वो आपको जो है डायरेक्टली जॉब्स दे देती हैं। मेटलर्जिस्ट का जॉब है बहुत सारी जगहों पे जो हो जाता है। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वेदांता करके कंपनी है, वो ले लेती है डायरेक्ट प्योर साइंस में। उसके सिवा आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी PSUs हैं, आप सेल देख लीजिए, आप भेल देख लीजिए, आप गेल देख लीजिए, ये सारी कंपनीज जो हैं, अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में आपने वो एक्सपर्टीज है आपके पास, तो आपको पक्का वो कंपनीज अपने में ले सकती हैं ताकि आप वहां पे ग्रो कर सकें। और आखिरी ऑप्शन, जैसा मैंने कहा कि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता है। हो सकता है अभी ज्यादा बच्चे नहीं ले रहे हैं ये, इसीलिए आपको जो है बहुत ही लिमिटेड या बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्कोप दिख रहा है। लेकिन अगर हम बाहर देशों की बात करें तो बाहर देशों में इसकी बहुत डिमांड है। आप पढ़ाई करके आपका जो भी है प्लान आगे, अगर आपको कोई बहुत अच्छे कॉलेज में आपने सोच रखा है कि मुझे इस कॉलेज से मास्टर्स करना है या मुझे कुछ देश के लिए करना है, और वो देश के लिए कुछ भी हो सकता है, मुझे नोबेल प्राइज जीतना है, नोबेल प्राइज किसी में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जैसे मैंने कहा आप रिसर्च कर सकते हो, वैसा कुछ आपने सोच रखा है, तो प्योर साइंस आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। ये आपको हेल्प करेगा आपकी रिसर्च में, ये आपको दिला के देगा नोबेल प्राइज, जो भी आपने सोच रखा हो, जिस भी फील्ड में सोच रखा हो। और बाहर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ यही कोर्स किया हुआ है, जिसके हम कहते हैं मास्टर्स ऑफ साइंस आप बोल देते हैं, या जो भी MS कोर्स बोलते हैं, बाहर यही चलता है मैक्सिमम। बाहर इंजीनियरिंग, बाहर टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें नहीं है, बाहर इसी का मोस्टली बोलबाला है। तो आप बाहर जा सकते हो और आप उसमें और रिसर्च करके अपने आप को और ग्रो कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जिस बच्चे को आगे कुछ उसने सोचा है उसको क्या करना है, या उसने ये सोच रखा है कि उसको बाहर जाके किसी एक फील्ड में बहुत ही ग्रो करना है, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे ज्यादा उस फील्ड या उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए सभी के सब बहुत ही उत्साहित हैं,
कि हाँ हमें जानना है कि इंजीनियरिंग में क्या ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी में क्या ऑप्शंस हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों हमें सब बोलते हैं कि हमें इंजीनियरिंग लेना चाहिए, क्यों हमें सब बोलते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे कौन कौन से फील्ड्स हैं, मैंने सारे फील्ड्स नहीं लिखे क्योंकि अगर मैं सारे फील्ड्स लिखने जाता तो हो सकता है 2-3 स्लाइड से उसी से भर जाती। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रखे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिसमें आप जा सकते हो, जिसको आप परहैप्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहली बात, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं कि आपकी जो बेसिक 4 ब्रांचेस थी जिससे आपका इंजीनियरिंग जो है शुरू हुआ, ये सबसे पहली जो 4 ब्रांचेस थी जिसे हम कहते हैं कोर ब्रांचेस। कभी भी कोई पूछे कि इंजीनियरिंग में आपकी कोर ब्रांच है कि नहीं है कोर ब्रांच, तो मैं आपको बता दूं कि वो कोर ब्रांचेस कौन सी होती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक केमिकल इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांचेस हैं जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा इंजीनियरिंग शुरू हुआ था। एक बुनियाद बनी थी कि अब यहाँ पे हम और भी ब्रांचेस खोलेंगे, अब यहाँ पे हम और भी बच्चों को लेंगे और अलग अलग ब्रांचेस में डाल के उनको अलग अलग चीजें पढ़ाएंगे। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये 4 मेजर ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग, और इसके बेसिस पे और ब्रांचेस बननी शुरू हुई, इनका कॉम्बिनेशन हो गया। फिर आप अगर और ब्रांचेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, सब लोग बोलते हैं कि आप जो है देख लीजिए, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लीजिए, कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाइए, बहुत स्कोप है आगे, तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, आप कहीं से भी कर लीजिए लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लीजिए। मैं थोड़ा अलग मानता हूँ, मैं कहता हूँ कहीं से भी मत कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच है, बहुत डिमांड है मार्केट में, हो सकता है आपको जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाए, लेकिन आप अपने कैलिबर के हिसाब से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए। आप अच्छी जगह जाएंगे, आपका जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा, आप अच्छे लोगों के संगति में रहेंगे। तो इस तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आई, ऑटोमोबाइल आई, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आई, जो मैंने बोला जिसको अगर किसी को नासा में जाना है, इसरो में जाना है, उसके लिए इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। ओशन एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आई, माइनिंग इंजीनियरिंग आ गई, मैकाट्रॉनिक्स करके आ गई। मैकाट्रॉनिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है 2 फील्ड्स का, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन है। जब ये दोनों को बनाया, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कि 2 ब्रांचेस को मिलकर बनने शुरू हुए थे, उसमें से एक ये था मैकाट्रॉनिक्स। नेवल इंजीनियरिंग, मराइन इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो आपका जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आया है। उसमें और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस 19-20 का फर्क है। आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो मोर और लेस आपका, और आपका आप कह सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियर ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर है। फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी 2 चीजों का मिलने से हुआ था, एक आपका बायोलॉजी फील्ड और एक टेक्नोलॉजी, ये दोनों जब मिले थे तो आपका एक बायोटेक्नोलॉजी करके एक ब्रांच शुरू हुई थी। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इस तरीके से बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर तो आप मुझे बोल रहे हो कि आपको नीट या आपको मेडिकल में जाना है, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे टेक्नोलॉजी भी थोड़ी पसंद है, तो मेरे हिसाब से अब बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक, ये आपके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, किस तरीके से बायोलॉजी इवॉल्व हुई है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होने लग गई है आजकल, किस तरीके से आप अगर आपको कोई सर्जरी करनी है बड़ी सी, कितनी आसानी से कर सकते हो, क्या क्या डिवाइसेस यूज होने लग गए हैं, ये सारी चीजें आपको इस ब्रांच में बताई जाएंगी कि कैसे मेडिकल ने प्रोग्रेस किया है इतना ज्यादा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से मेडिकल फील्ड पूरा चेंज हो गया है। सबसे पहला ऑप्शन, क्लास 12th में है बच्चा, पीसीएम लिया है, सब बोल रहे हैं इंजीनियरिंग ले लो। इस वजह से ये स्पेसिफिक फील्ड बहुत ही फेमस है, हर बच्चा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा बड़े होके। सो इंजीनियरिंग जो है सबसे ज्यादा आप कह सकते हो उसका बोलबाला है पूरा, कि अगर मैंने पीसीएम लिया है, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हूँ क्लास 12 में, तो मुझे इंजीनियर तो बनना ही चाहिए। वो हो सकता है पेरेंट्स से आए, हो सकता है फ्रेंड्स से आए, हो सकता है रिश्तेदारों से आए, किसी से भी आ सकता है, बट चाहते हम सब ये हैं कि हम इंजीनियर बने। दूसरा, जब हम मार्केट की बात करें, अलग अलग जगहों पे हम देखें,
तो वहां पे जब आप जॉब के लिए जाते हो तो एक चीज जो है जो कि हर कंपनी सोचती है वो ये सोचती है कि अगर तो हम किसी इंजीनियरिंग वाले पर्सन को लेंगे जिसने इंजीनियरिंग की है तो फिर हमें फायदा होगा। वो वैसी सोच बन चुकी है मार्केट में कि अगर तो इसने इंजीनियरिंग की है इसका मतलब ये ज्यादा कैपेबल है। ऐसा होता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर इस तरीके से मार्केट चल रहा है। क्या हमें सिर्फ इंजीनियर्स चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जिसने बीटेक किया है, हमें सिर्फ वो चाहिए जिसने आप कह सकते हो बीएससी नहीं किया है या जिसने बीई नहीं किया है, जिसने एमटेक किया हुआ है। तो वैसे काफी सारी सोचें अब मार्केट में आ गई हैं और इस वजह से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ऐसा फील्ड है जो कि एवरग्रीन फील्ड कहते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है जॉब्स की, मार्केट में आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी अगर आप इसमें जाना चाहेंगे तो। और आखिरी ऑप्शन, जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में भी, आप सबने अच्छे से देखा वीडियो में, सबने इंजीनियरिंग ली थी, सब गए पढ़ने के लिए कॉलेज में एक, और बाहर निकल के कोई सिविल सर्विसेज में चला गया, कोई राइटर बन गया, कोई बैंक्स के लिए काम कर रहा है, बड़े बड़े बैंक्स के लिए, वर्ल्ड बैंक्स के लिए, और बहुतों ने कंपनीज खोल दी, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे। तो ये एक है चीज जो कि आप कह सकते हो कि हर इंजीनियर हर एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करता है अपनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पहले से वो करता है, पहले वो नहीं होता है क्लियर, पहले वो आपकी तरह मेरी तरह सब लोगों की तरह कंफ्यूज होता है। हो सकता है कि उसको पेरेंट्स बोले, उसके दोस्त बोले और वो सोच ले कि चलो ठीक है मैं इंजीनियरिंग ही कर लेता हूँ, बट उसके बाद भी उसके पास वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपना पैशन फॉलो करने की, अपनी इच्छाएं पूरी करने की, कि मुझे तो सिविल सर्विसेज में जाना था, जैसे मुझे यहाँ पे बहुतों ने बोला है। मैं उसके आपको आंकड़े नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर आंकड़े बताऊंगा तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी किसी का सपना टूट जाए कि नहीं मुझे नहीं करना है। मैं आपको कहूंगा आप इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावित ना हो, आपने जो सोच रखा है आपको करना है आप उसको अच्छे से करें। बहुत लोग डराएंगे, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि नहीं इसमें तो बहुत कम सिलेक्शन होता है, आप सबको बोलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मेरा पहली बार में, जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा कि एनआईटी सूरत से पढ़ा है, इस कहानियों के पीछे बहुत सारी ऐसी कहानी है जो कि बोली नहीं गई है इंट्रोडक्शन में। मेरे को पहली बार में इंजीनियरिंग नहीं मिली थी, मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा था, मैं भी नहीं कर पाया था। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं कहीं भी ले लीजिए एडमिशन, क्यों ट्राई कर रहे हो बहुत अच्छे कॉलेज में, हो सकता है किसी और कॉलेज में हो जाए। पर मैं एक चीज के लिए बहुत क्लियर था कि करूंगा तो अच्छे कॉलेज से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1 साल रुका, मेहनत की और उसके बाद जाके मुझे जो है एनआईटी में एडमिशन मिला। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, आप जो है अपने लिए हमेशा बेस्ट सोचिए। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊं। मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं उस दिन बोलूंगा जिस दिन मैं हासिल करके दिखाऊं। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एक्चुअरी। एक्चुअरी क्या होता है? मोस्टली जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन इंश्योरेंस कंपनीज में जो प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं या जो भी इन कंपनी से रिलेटेड है, उसके बेसिस पे आप एक्चुअरी में जा सकते हैं। मैथमेटिशियन, डेटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन, इकोनॉमिस्ट। स्टैटिस्टिशियन क्या होता है? जो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स यूज करता है। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा आपके 11वीं में, 12वीं में, उसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें वो ट्रेंड बताते हैं कि आगे कैसा ट्रेंड होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे इवन जो आपकी बारिश का प्रेडिक्शन होता है उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, कि आगे बारिश होगी नहीं होगी, कितनी होगी, सबके लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। इकोनॉमिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट बहुत ही एक ट्रेंडिंग अभी आजकल चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हर जना जो है डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, हर एक को डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा एनालिस्ट बनना है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये है तो हर जने को यही करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला, कुछ भी चूज कर लीजिए, बस उसको आप बहुत अच्छे से कीजिए, वो अपने आप जो है आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रोफेसर और स्कूल टीचर आप बन सकते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग क्लर्क,
एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हो। इसमें अगर आप गौर करोगे तो मैंने आर्मी नहीं लिखा है, इसमें मैंने एयरफोर्स और नेवी लिखा है, और इसका एक रीजन है, क्योंकि आर्मी ऐसा है जो कि जरूरी नहीं है कि आपने साइंस लिया है तो ही आप आर्मी में जा सकते हो। आप कॉमर्स में हो तब भी आप आर्मी में जा सकते हो, आप आर्ट्स में हो तब भी उसके तरीके हैं कि आप आर्मी में घुस सकते हैं। बट एयरफोर्स और नेवी में अगर जाना है किसी को तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है आजकल, वो आप एक ट्राई कर सकते हो। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसके, आईआईटीज करवाते हैं आपके, आईआईटी खड़गपुर में है, आईआईटी रुड़की में है आपका, आईआईटी बॉम्बे में है आपका, सीईपीटी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको आर्किटेक्ट बनाते हैं। मीटियोरोलॉजिस्ट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, इंश्योरेंस अंडरराइटर, फाइनेंशियल इंजीनियर, अकाउंटिंग सुपरवाइजर, अकाउंट्स पेएबल क्लर्क। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको जो भी लगे कि आपके करियर के लिए ठीक है, जो भी लगे आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है डेटा साइंटिस्ट ही ठीक लगना चाहिए या फिर आपको जो है सिर्फ आर्किटेक्चर ही अच्छा लगना चाहिए। जो भी फील्ड लगता है कि ये फील्ड मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा है, वो करियर आप ऑप्ट कीजिए और उसमें आप अपनी ग्रोथ देखिए, आपको पक्का वो ग्रोथ मिलेगी। अब इसका अगर हम एक रीजन देखें कि क्यों आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड लेने चाहिए या फिर आपको इन्हीं चीजों में जाना चाहिए, उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग या ब्लॉकचेन में जाना चाहते हैं, आजकल बहुत सुनाई में देता है कि ब्लॉकचेन चल रहा है, ब्लॉकचेन का एक ट्रेंड चल रहा है, ब्लॉकचेन ही में जाना चाहिए सबको, आगे जाके सब कुछ ब्लॉकचेन हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी चल रहा है बहुत कुछ, कि किस तरीके से आप डिजिटली जो है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, इसका एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वो इस सेशन के लिए जरूरी नहीं है। अगर इनमें से कोई आपको चाहिए करियर, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, तो आपके लिए मैथमेटिक्स जैसा फील्ड लेना बहुत ही फायदेमंद। दूसरी चीज, कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में है। आईएसआई एक कॉलेज है उसमें से, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और एक नहीं है, शुरुआत कोलकाता से हुई थी, अभी टोटल 10 आईएसआई आ चुके हैं। और ये क्या क्या कराते हैं, ये आपको ऑपरेशन रिसर्च करवाते हैं, ये आपको मैथमेटिक्स में आपका तैयारी करवाते हैं, इकोनॉमिक्स में इनका है, अगर आपको इकोनॉमिक्स में भी जाना है, आपको मैथमेटिक्स में जाना है, आपको इकोनॉमिक्स बनना है, अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च करनी है, इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कि अब शुरू हो गए हैं, जबकि शुरुआत में इतने नहीं थे। लेकिन बेस्ट आईएसआई जो कि जब शुरू हुआ था वो कोलकाता में है। आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस करके कॉलेज है चेन्नई में, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। ये 3 डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो कि आप सोच सकते हो। आप आईएससीआर जो आप बोल रहे हो, ये आईएससीआर वो है जो इसको प्योर साइंस कोर्स करना होता है। मैं ऐसे ही जस्ट चैट में देख रहा था, मुझे एक दिखा, तो आईएससीआर करके भी है, उसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च। आईएससी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जो है आपका बैंगलोर में है। आपका आईएसटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हो। आपके टोटल 13 आईएससी आ रहे हैं अभी, शुरुआत में बहुत कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बढ़ते गए, और अभी टोटल 13 जितने हैं जो कि अभी इंडिया में है। आर्किटेक्चर, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, सेकंड मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन कहते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आपने मैथ्स लिया है और आपको ग्रो होना है तो कहते हैं कि आर्किटेक्चर आपका सबसे अच्छा दूसरा ऑप्शन है। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन इंजीनियरिंग है, जो कि मैं आपको बता रहा था अगर पीसीएम लिया है, लेकिन आजकल आर्किटेक्चर का भी बहुत ज्यादा होने लग गया बोलबाला। बहुत लोग चाहते हैं कि हमें आर्किटेक्चर बनना है, हमें देखना है कि किस तरीके से हम बिल्डिंग्स का डिजाइन कर सकेंगे, किस तरीके से। बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर भी बन रहे हैं, जो कि अगेन आर्किटेक्चर का एक आगे आप कह सकते हो सबसेट है। तो ये बनने के लिए आपको बी आर्किटेक्चर करना होता है। बी आर्किटेक्चर जो है आपका मोस्टली जेई मेन, जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है, उसी में आपका बी आर्किटेक्चर का भी एग्जाम होता है। अलग से भी एग्जाम्स होते हैं इसके, नाटा करके एक एग्जाम होता है, एक एईटी करके एग्जाम होता है। तो ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। आर्किटेक्चर इन एप्टीट्यूड टेस्ट, एईटी का मतलब होता है, या फिर नाटा आप दे सकते हो, और इन बेसिस पे आप आर्किटेक्चर में अपना एडमिशन
पक्का कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक रफ आइडिया कि अगर तो हमें साइंस में जाना था, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जाना था, मैथमेटिक्स में जाना था, तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन आ गए। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, बस हमें चूज करना है हमें कौन से में जाना है। आपको सर्जरी करनी है विदाउट मेडिसिन। देखिए जैसे मैंने आपको एक सिंपल से बताया था कि एमबीबीएस इज बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो वो एमबीबीएस तो बेसिक है अगर आपको सर्जरी करनी है, लेकिन अगर आपको ये समझना है कि सर्जरी में क्या यूज होता है, सर्जरी के लिए किस तरीके से क्या क्या फील्ड्स में आपको जो है कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, किस तरीके से सर्जरी को और बेटर किया जा सकता है, उसके लिए आप बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। उसके लिए और भी आपके फील्ड्स हैं, न्यूरोसर्जन और ये सब तो बहुत अलग है, इसके लिए आपको मेडिसिन ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बैकएंड में भी टीम काम करती है जो कि बताती है किस तरीके से हम सर्जरी को और अच्छा बना सकते हैं। उसमें एक रिसर्च होता है, वो फील्ड होता है जो लोग प्योर साइंस लेते हैं, जो पूरा टाइम उसी में रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से हम और चेंज ला सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में। चलिए अब इंजीनियरिंग के लिए हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की बात करते हैं। ओके, अब सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस हैं हमारे, या सबसे ज्यादा जो हम कहेंगे कि एग्जाम जिस बेसिस पे आपको मैक्सिमम कॉलेजेस मिल सकते हैं वो है आपका जेई मेन, जेई एडवांस। बहुत पहले जब मैंने आपको कहा जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ऐसे जेई मेन जेई एडवांस नाम की कोई चीज नहीं थी। उस टाइम पे होता था AIEEE और आपका IIT का अलग एग्जाम। अब क्या हो गया कि IIT के लिए उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया कि आपको पहले जेई मेन देना है, फिर जेई एडवांस दोगे और उसके बेसिस में आपका IIT में हो जाएगा। उसके अलावा पहले और ये होता था कि हर प्राइवेट कॉलेज अपना अलग से एग्जाम करवाता था, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग एग्जाम होता था। मैं गुजरात में था तो मेरे लिए गुजरात का स्टेट एंट्रेंस एग्जाम था, कर्नाटका का अलग होता था, यूपी का अलग होता था, हर एग्जाम अलग होता था। दिल्ली का आपका DU का अलग एग्जाम होता था। अब जो है कोशिश ये कर रही है गवर्नमेंट कि आपके सारे कॉलेजेस जो है वो जेई मेन में ही आ जाए, आप उस एग्जाम में अच्छा सा कीजिए और उसके बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस जो है आपको एडमिशन दे देंगे। तो जेई मेन आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम एग्जाम के बेसिस पे जो है डिसाइड करता है कि बच्चे किस तरीके से आगे ग्रो करेंगे, किस तरीके से उनको क्या कॉलेज मिलेगा, वो अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब एक एग्जाम आपका पूरा करियर डिफाइन कर सकता है। तो जेई मेन एग्जाम है जो कि इंजीनियरिंग में आपका डिफाइन कर सकता है कि आपको किस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आप NITs में एडमिशन ले सकते हो, उसके बेसिस पे आप बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, आप बहुत सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा फिर जेई एडवांस आता है, तो जैसे ही जेई मेन में आपके कुछ परसेंटाइल आ गए, टोटल 100 परसेंटाइल हाईएस्ट होते हैं, आपके 90 परसेंटाइल के ऊपर अगर आ गए जेई मेन में, तो आप जेई एडवांस एग्जाम लिख सकते हैं। एक क्राइटेरिया है जेई एडवांस लिखने का कि आपके मिनिमम 90 परसेंटाइल आने चाहिए, उससे ज्यादा आएंगे तब आपकी चांसेस हैं कि आप जेई एडवांस का एग्जाम लिखोगे। और जेई एडवांस लिखने के बाद आप IITs में जा सकते हैं, उसके बाद आप ISC में जा सकते हैं, आप ISCR में जा सकते हैं। मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे अच्छा ISCR में क्या होता है, ISC में क्या होता है। उसके लिए भी आपको जेई एडवांस लिखना पड़ता है और उस स्कोर के बेसिस पे आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बिटसेट बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज, बिट्स पिलानी करके। उसके लिए एक अभी भी अलग एग्जाम होता है, अभी भी चांसेस है कि आप अपनी अलग से तैयारी करके बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हो। और सिर्फ पिलानी नहीं है, बिट्स दुबई में भी है और बिट्स गोवा भी है, 2-3 बिट्स खुल चुके हैं। आप इन बिट्स में जा सकते हो आपके बिट सेट के स्कोर के ऊपर कि आपका बिट सेट का स्कोर कितना है। वेलोर का अलग एग्जाम होता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्टेट इंजीनियरिंग, जो मैं कह रहा था अलग अलग स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं। बट इस साल क्योंकि पेंडेमिक था, इस साल बहुत सारी चीजें अलग हुई, इसीलिए मोस्टली आपके स्टेट इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स थे वो जेई मेन में ही आ गए। बहुत सारे स्टेट्स ने बोला कि आपका जेई मेन का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे हम आपको अपने स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन दे देंगे। तो ये चीजें, ये बदलाव आया है और ये बदलाव हो सकता है 2-3 साल में और भी ज्यादा आ जाए, और भी सारे कॉलेजेस जो है जेई मेन में आ जाए। हो सकता है आपका वेलोर अभी अलग है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलग कॉलेजेस है, हो सकता है वो भी जेई मेन में ही आ जाए पूरा के पूरे। और आपका पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंस है वो इस पे रहेगा कि आप जेई मेन में कैसा परफॉर्म करते
ये मैंने आपको बताया कि जब 2012 से पहले AIEEE, IIT JEE अलग एग्जाम होते थे, कॉमन एग्जाम नहीं होते थे। अब जाके जेई मेन, जेई एडवांस एक कॉमन एग्जाम हो गया अगर आपको IIT में जाना है। आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है 90s, और उसके लिए आपको शुरुआत जेई मेन से करनी है। 2013 से ये डिसाइड हुआ था कि आपके इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर जैसे मैंने आपको बोला, आपको IITs में जाना है, आपका IIT कानपुर हो गया, आपका IIT बॉम्बे हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, आपका IIT रुड़की हो गया, ये सारे IITs जो हैं इसके लिए एक अलग से एग्जाम जेई एडवांस का आर्किटेक्चर होता है, बी आर्किटेक्चर, जिसके बेसिस पे ये आपका एडमिशन लेते हैं इन कॉलेजेस में। नेक्स्ट, जेई एडवांस ने रिप्लेस कर दिया था IIT जेई को, जो मैंने बोला, और इसमें से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे, मैं आपको बताऊं टोटल बच्चे जो बैठते हैं जेई मेन लिखने वो होते हैं 17 से 18 लाख, और सिर्फ 2.5 लाख। इसीलिए मैंने आपको कहा था टॉप 10%। 18 लाख या 20 लाख का अगर आप टॉप 10% लोगे तो 2 लाख आएगा। तो अगर आप उन 2 लाख बच्चों में हो तो आप जेई एडवांस दे सकते हो। इसीलिए वो 10% और इम्पोर्टेंट है कि आपको अबव 90 लाओगे तो आपके पास चांसेस होंगे कि आप जेई एडवांस के लिए अपीयर कर सको, क्योंकि हर साल 18 से 20 लाख बच्चे जो है आपका ये एग्जाम देते हैं, और उसमें से सिर्फ 2 से 2.5 लाख के बीच ऐसे बच्चे हैं जो कि जेई एडवांस में एग्जाम लिख पाते हैं जेई मेन क्वालिफाई करके। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में ये कॉलेजेस हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि हर जना चाहता है कि अगर मुझे मेडिकल करना है तो इनमें से किसी कॉलेजेस में से। पहला है एम्स, सभी जानते हैं एम्स के बारे में। तो अगर किसी ने सोचा है कि उसको नीट देना है और उसको अच्छे कॉलेज में जाना है तो उसका सबसे पहले ऑप्शन होता है कि मुझे एम्स से ही करना है अपना मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। दूसरा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको एक आर्मी का इन्वायरमेंट भी मिलता है। ये पुणे में है कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर मेडिकल में कोई जाना चाहता है उसके लिए ये कॉलेज भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा एम्स और जितने अच्छे बाकी कॉलेज हैं। फिर एक है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में। तो ये 4 कॉलेजेस हैं जिसे आप कह सकते हो कि 4 खंबे हैं जो कि पूरे की पूरी मेडिकल को संभाल रहे। तो अगर आप में से किसी की इच्छा है तो आपको इन 4 में से कोई कॉलेज टारगेट करना चाहिए। आप अगर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे अपने आप से, अगर आपकी इच्छाएं होंगी कि मुझे जो है आसमान को छूना है, तब जाके आपको इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर हम बात करें तो 2020 से सारी MBBS सीट्स जितने भी कॉलेजेस हैं, आप एम्स बोल दीजिए, आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज बोल दीजिए, मौलाना आजाद बोल दीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोल दीजिए, चंडीगढ़ में आपका एक मेडिकल कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस की सीट्स जो है वो नीट एग्जाम के थ्रू भरनी शुरू हो गई। जैसा मैंने आपको कहा कि इंजीनियरिंग के लिए एक कॉमन एग्जाम वो सोच रहे हैं जेई में, वैसे ही मेडिकल के लिए भी उन्होंने कॉमन एग्जाम सोचा है नीट, कि हम नीट करवाएंगे ताकि हर बच्चा जो है इस स्कोर के बेसिस पे उसको MBBS में एडमिशन मिल सके। टोटल सीट्स कितनी है अगर हम बात करें तो टोटल आपकी सीट्स 80,000 हैं MBBS में और 43,000 है PG में। और कितने बच्चे बैठते हैं इसमें भी आपके 17 से 18 लाख बच्चे बैठते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहूं तो इंजीनियरिंग से ज्यादा बच्चे बैठते हैं और सीट्स और भी कम है। तो इसमें कंपटीशन अगर हम देखें, कोई अगर बोलता है कि इंजीनियरिंग में बहुत कंपटीशन है, तो मेडिकल में मेरे हिसाब से कितने बच्चे कन्वर्ट करते हैं अगर वो हम कैलकुलेट करें तो इसमें और भी ज्यादा कंपटीशन है और भी डिफिकल्ट है। बट ऐसा नहीं है कि आपका डिफिकल्ट सिर्फ अंदर जाना है, उसके बाद भी बहुत मेहनत है। बट वो शुरू की जो मेहनत है वो बस शुरू की मेहनत है। कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि जब बाकी सब मेहनत कर रहे होंगे और आप जो है उस मेहनत का फल ले रहे होंगे जो आपने मेहनत की होगी इतने सालों में। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि मैंने आपको कहा 16-17 लाख जितने बच्चे होते हैं जो कि देते हैं, और 17 लाख में से सिर्फ 80,000 सीट्स हैं जो कि MBBS के लिए। तो 17 लाख 18 लाख जितने भी बच्चे बैठेंगे सिर्फ 80,000 बच्चे जो है MBBS निकाल पाते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली
अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे आप, जो कि मोस्टली करते ही हैं जिनको मेडिकल में जाना होता है, तो उसके लिए सीट्स और भी कम हो गई हैं। उसकी सीट्स आधी हो जाती है, वो हो जाती है 43,000। तो अब आपसे फिर से मैं ये सवाल पूछता हूँ, सेशन खत्म होने ही वाला है, एक आध स्लाइड और होगी, आई थिंक हमारा सेशन भी एकदम टाइमली खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल मैं फिर से पूछता हूँ कि आप सब अभी 12th साइंस में हैं, कितने हैं जिनको इंजीनियरिंग करना है, कितने हैं जिनको मेडिकल करना है, और कितने हैं जिनको और ढेर सारे फील्ड जो हमने अभी डिस्कस किए वो करने हैं। आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसको क्या क्या करना है। ओके, मेडिकल, सर्जरी, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, ओके, सिविल सर्विसेज, ओके, अच्छा। मतलब इस सेशन के बाद भी मेरे को लग रहा है मोर और लेस अभी भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको टुवर्ड्स मेडिकल है, टुवर्ड्स इंजीनियरिंग है, बाकी वाले अभी भी कम है, बट ठीक है, आपने जो भी सोचा है सारी चीजें अच्छी हैं। जो चाहता है कि उसको लॉ में जाना है, उसमें भी बहुत स्कोप है, क्योंकि मैंने देखा किसी ने लॉ ये भी लिखा था कि उसको लॉ परस्यू करना है आगे। सिविल सर्विसेज तो ऑब्वियसली, सिविल सर्विसेज एक्चुअली में आपके लिए जॉब नहीं है, ये आपकी ड्यूटी होगी। जो भी लिख रहा है सिविल सर्विसेज, उसको आप ड्यूटी समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक करियर ऑप्शन चाहिए, ये आपकी ड्यूटी होगी आपकी कंट्री के लिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारी चीजें जो है आपकी ड्यूटी है। तो इसी से मैं आखिरी में एक आखिरी कोड बोलना चाहूंगा। मेरे पास एक वीडियो और भी है, अगर किसी को वीडियो देखना होगा तो वो वीडियो भी हम देख सकते हैं इसके बाद। सिंपल सा कोट है, सक्सेस इज इजी, लेट अस कीप इट सिंपल। इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मुश्किल है, सक्सेस नहीं मिल पाता है, या बहुतों को सक्सेस नहीं मिल पाता है, सब सही कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि बहुत लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेट कर रखा है। आप सिंपल से एक एक कदम करते जाइए, एक एक कदम ऊपर लेते जाइए, और मैं आपको एक चीज कह सकता हूं पक्का, कि अगर आपने सारी चीजें ठीक से की हैं तो आपको सक्सेस तो पक्का मिलेगी। I wish all the very best to all the students who joined us for this session. I hope कि मेरा सेशन सबके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ फायदे का रहा हो। आप लोग और श्योर हो गए आपको क्या करना है, आपको अपने करियर को किस तरीके से ग्रो करना है, आपको और क्लैरिटी मिल गई हो थोड़ी सी। और इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो जैसे मैंने कहा है कि आपके सारी क्वेरीज जो हैं ऑलरेडी हम एक बार हमें मिल गई, और उसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करके हम उन क्वेरीज को एड्रेस कर लेंगे, ताकि आप और क्लियर हो जाएं कि आपको क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। तो अब मुझे बताइए कि क्या हम एक वीडियो और देखना चाहेंगे, क्या हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स में जाएं? आप बताइए, वीडियो किस किस को देखना है अभी? आप हाथ रेस कर सकते हैं। यस यस यस, वीडियो ठीक है। तो चलो अभी हम एक वीडियो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर्स में चले जाएंगे कि हमको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जो जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चन जो है फिर हम देखते हैं किस तरीके से उनको टैकल कर सके, ताकि हर बच्चा अपना जो भी उसने डिसाइड किया वो डिसीजन वो ले सके। तो मैं ये स्क्रीन जो है अभी स्टॉप कर देता हूं और आपको दूसरा एक वीडियो शुरू कर देता हूं। एक सेकेंड। सबको सेशन कैसा लगा? अगर मैं एक बार सबसे पूछना चाहूँ कि सब बच्चों ने जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे जिस तरीके से हर एक से मैं बात कर रहा था, हर एक से हर चीज में डिस्कस कर रहा था। हो सके मेरा सेशन कहीं ना किसी दिल को छू जाए और आप लोग जो है वो सही डिसीजन ले सकें, ताकि आपका जीवन और भी सफल हो जाए। तो मैं आपको अभी जस्ट एक वीडियो दिखा देता हूँ, आखिरी सा वीडियो है, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे। ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा ये एक बार आपको वीडियो दिखे तो आप मुझे बता देना। एक सेकेंड। ठीक है, लास्ट वीडियो
और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। I'm from a small village, from a family with 5 children, no income. So fortunately I was poor. Because I was poor, I knew one thing, tomorrow is going to be better. And I kept focusing on my studies. I am Dr. A. Velumani, Managing Director of Thyrocare. This is my story of how I reached for better. I hope आप सबको आवाज सुनाई दे रही है। मैम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's going well. What I had was luxury of poverty. At no point of time I had a fear because I had nothing to lose. Fortunately, Coimbatore did not give me job and I had to move to Mumbai and I got a government job, Baba Atomic Research Center, wonderful job. Did it for 15 long years. Fortunately, I was not happy with that job also. I resigned my government job in 1996 and I had 2 lakh rupees of provident fund which I have invested into the business. It was all the money I had at that time and I risked all of them together and it was the romance with the risk. There is a saying in Tamil and if I translate in Hindi, एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल. In my business, I invested 2 lakh rupees, which I considered that hair, and today it is worth $500 million. That is the pahad. Without taking risk, nothing happens. बड़ा बनना है तो रिस्क लेना है. Today it is the most sought script in the stock market and I got my IPO oversubscribed 75 times. If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. Fortunately, I started late. Fortunately, it took time to reach success and I am successful only when I am 55. And success, if it comes early, it's very difficult to sustain. So it is good to start business late when you are matured, when you understand business and then work on it. Business is not a 100-meter dash, it is a marathon race. In 1978, when I finished my degree, I attended 50 interviews and failed in all of them for one simple reason. They asked for experience and I was a fresher. It was so frustrating. That time itself I took a decision. If I start a company of my own, I will only procure freshers and I will not take experienced. And today I have got 1800 staff. For all the 1800, I am the first employer. There are only 2 things. One is security, another is prosperity. There is no secured prosperity, so price it low. If you're an entrepreneur, price it low because there is no company on this earth which is closed down because they have priced it low. Many ask me a question. Yes, it's a majestic journey. We have reached here. What next? I tell one more zero to explain. If I have 1800 employees, I want it to be 18,000 employees. And once you have 18,000 employees, your turnover will have 0, your profits will have 0. I am a man of mathematics and I chase zeros. Romance with risk to reach for better. Okay, that's it from my end. I hope it was a wonderful video because obviously मैंने कई बार देखा है और कभी भी मैं देखता हूँ, मुझे हमेशा यही लगता है कि आई एम अ मैन ऑफ मैथमेटिक्स एंड आई चेज जीरो. तो आप भी वही देखिए किस तरीके से वो जीरो को हम पीछे लगा सके नंबर के, ताकि हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज्यादा हम अपने आप को ग्रो कर सकें. अब एक क्वेश्चन मुझे जो दिखा था, मैं देख रहा था जब ये सेशन चल रहा था कि बीकॉम में है क्या हम उसके बाद या सॉरी हमने साइंस लिया है क्या हम बीकॉम में जा सकते हैं या वो कर सकते हैं. तो एक अच्छा बेनिफिट जो साइंस का है वो ये है, जो कि कॉमर्स आर्ट्स नहीं देता है, कि साइंस के बाद आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं. आप बीकॉम भी कर सकते हैं, आप बीए भी कर सकते हैं, आपको जो भी करना है आप साइंस के बाद वो ऑप्शंस होते हैं ताकि आप कर सकते हैं. लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि
आपने कॉमर्स में है और कॉमर्स से आप सोचिए कि क्या कॉमर्स से हम शिफ्ट हो सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन उसमें नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस होता है अगर हम कंपेयर करें बीएससी या साइंस से कंपेयर करें कॉमर्स या आर्ट्स को। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? Ma'am, if you can just take those questions, if there are any questions. Yeah, I'll request Sanjida to take up the questions on behalf of students. Yes, thank you, Meenu ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. I Yes. hope students thoroughly enjoyed this session. I'm still not sure, but yeah. Yes, It was so- wonderful. It was wonderful, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. So we have a question from Sneha Rani. She has not mentioned which JNV. She is asking which path should I follow to become a scientist? So it is a Okay. general question. Avinash sir, if you can answer this. Yes, see, as I mentioned, अगर आप प्योर साइंसेस के कोर्स देखें तो प्योर साइंसेस के जो कोर्स हैं उनका जो ज्यादा फोकस है वो उस पे होता है कि आप और रिसर्च कर सकें। तो ये कोर्सेज जो हैं ये आपको एक्चुअली में साइंटिस्ट बनने में हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें से कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं? सपोज कोई मुझे बोल रहा है कि उसको इसरो में काम करना है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो इसरो का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उनको इसरो में काम करना है। तो एक आईआईएसटी करके कॉलेज है, आईएसटी का एसोसिएशन इसरो के साथ डायरेक्टली है। मेरे खुद का फ्रेंड है, इसीलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जेई एडवांस के बेसिस पे वो आईएसटी में एडमिशन लिया उसने वहां पे अपने 4 साल इंजीनियरिंग की और वहां से फिर डायरेक्टली उसको इसरो में मिल गया एज अ साइंटिस्ट। तो अगर आपको इसरो में जाना है तो मैंने आपको एक पूरा का पूरा करियर पाथ बता दिया कि आप जेई मेन देंगे, जेई एडवांस देंगे, आईएसटी का एग्जाम जेई एडवांस के एग्जाम के बेसिस पे आईएसटी में एडमिशन लेंगे और उसके बाद आप इसरो में जा सकते हो। आप नासा में भी जा सकते हो उसी तरीके से, अगर बाहर से आप कहीं से करो। तो ये एक करियर पाथ हो गया आपका अगर आपको इस फील्ड में आगे ग्रो करना है। फिजिक्स में ग्रो करना है तो आपका फिजिक्स के लिए रिसर्च होती है, बहुत सारे कॉलेजेस करवाते हैं फिजिक्स में रिसर्च। आपको अगर आईएससीआर में चले गए आप, आईएससीआर भी आपका जेई एडवांस के थ्रू ले लेता है। आपका आईएससी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सब में प्योर रिसर्च होती है और इनके बेसिस पे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। Yes, Thank ma'am. you, Abhinesh. I hope, Sneha, you have received your answer. We have another question, और अगली question है सुनिधि से. Sunidhi is asking, Air Force, is it good for girls? Okay. Abhinesh sir. ओके मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई भी फील्ड डिफरेंशिएट नहीं करता। तो मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि आप उस तरीके से मत सोचिए कि क्या ये फील्ड हमारे लिए अच्छा है, क्या ये फील्ड हमारे लिए नहीं अच्छा है। सारे फील्ड्स सबके लिए अच्छे हैं, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप ऑब्वियसली एयरफोर्स में, मैंने जैसा आपको बोला पर्सनली मैं उसमें भी जानता हूँ अपने कलीग्स को कुछ जो कि एयरफोर्स में गए हैं और राइट नाउ दे वर आल्सो स्टडिंग विद मी, फीमेल्स थे एंड राइट नाउ दे आर डूइंग रियली वेल वर्किंग इन डिफरेंट एयरफोर्स सर्विसेज। तो एयरफोर्स सबके लिए अच्छा है, फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उस टाइम की बात अलग है जब 11-12 साल, जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि उस टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग थी, डिफरेंट थी। बट अब इस टाइम पे आपकी ये जो जेंडर डाइवर्सिटी है, कोई भी हो, आप सिविल इंजीनियर बोल दीजिए, आप आर्किटेक्चर में बोल दीजिए, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो सोचते थे कि नहीं ये तो मेल्स के लिए ज्यादा अच्छे हैं, जो फील्ड जॉब्स हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ये मेल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस है। बट अब ऐसा नहीं रहा है, अब आप जहां जाना चाहे आप जा सकते हैं, आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की मिलेंगी और उतना ही अच्छा आप अपने करियर में कर सकते हैं। Thank you, sir. I hope, Sunidhi, your doubt is cleared. अगली क्वेश्चन है शिवानी यादव से, JNV विदिशा. उन्होंने पूछा है, सर सीडीएस के लिए कौन सी डिग्री बेस्ट रहेगी, बीएससी या बीटेक? ओके, सीडीएस करना है। सीडीएस में देखिए मैं आपको जैसे ये बताया था कि ये वैसे एग्जाम्स हैं जिसमें बीटेक का क्या फायदा होता है, या अगर मैं सिर्फ बीटेक के आपको बेनिफिट्स बताऊं तो बीटेक के बाद ना, जैसे आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था एक कॉलेज का कि बच्चे अलग अलग जगह पे चले गए और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। जैसे अभी आप सीडीएस सोच रहे हो सकता है मेरी तरह या बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं आप भी उसी सिचुएशन में हो, क्या मुझे सीडीएस में जाना चाहिए या क्या मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए, क्या मुझे नेवी में जाना चाहिए। तो आपने सोचा होगा चलो अभी मैं सीडीएस
चूज कर लेती हूँ। बट हो सकता है जब आप तैयारी शुरू करो 1 साल के बाद, जब आप इवेंचुअली एग्जाम दे रहे हो उसका, तब आपको लगे कि नहीं मुझे ये नहीं, इसकी जगह ये जाना चाहिए, तो उस टाइम पे बीटेक अगर लिया होगा तो थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीटेक से आप इजीली मूव कर सकते हो। बीएससी जो है आपका मोर और लेस, जैसे मैंने आपको बोला, वो प्योर साइंस कोर्सेज हैं, उसमें आपको बहुत इन डेप्थ में वो चीजें पढ़ाएंगे जो शायद आपके सीडीएस के लिए रेलिवेंट भी नहीं होगी, जबकि बीटेक में आपको वो चीजें मिलती हैं पढ़ने को जो कि आपको एक अच्छी फाउंडेशन बना देंगी ताकि आप बहुत अच्छा कर सको। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं शिवानी जी, तो आप बेटर ऑप्शन रहेगा बीटेक लीजिए, आपके और स्कोप बढ़ जाएगी, आपकी और अपॉर्चुनिटीज होंगी, और आप अपने करियर में सिर्फ सीडीएस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपके पास बहुत ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सी आई टेल यू वन वेरी गुड थिंग जो कि मैंने सीखी है, कि आपके जो बेगर्स होते हैं, तो बेगर्स आर लूजर्स, दे आर नॉट चूजर्स। हमें बेगर नहीं बनना है, वी डोंट वांट टू बी लूजर्स। हमें चूज करना है कि हमें क्या चाहिए। 10 ऑप्शन हैं, 10 में से हमें क्या चाहिए, हमें वो चूज करना है। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो है उस तरीके से अपनी करियर का ग्रोथ देखें। ठीक है मैम। थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है आरूही सिन्हा से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर? शी इज फ्रॉम जेएनवी कटिहार। जेएनवी कटिहार ना, तो उनको डिफरेंस चाहिए सिविल इंजीनियरिंग वर्सेस आर्किटेक्चर का, राइट? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस है इसमें, आर्किटेक्चर जो ये डिजाइनिंग करेंगे आपके, ओके, तो आपका जो भी डिजाइनिंग है या स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग है, जिसमें आप हाउसेज देख लीजिए, फैक्ट्रीज देख लीजिए, आपका म्यूजियम देख लीजिए, स्काई स्क्रेपर्स देख लीजिए, ये सारी चीजों का जो है, जिसका सिर्फ डिजाइनिंग और प्लानिंग है, वो आर्किटेक्चर करते हैं। लेकिन मैं सिविल इंजीनियर्स बोलूं तो वो आपका पूरा एंड टू एंड टिल द टाइम देयर इज अ कंप्लीशन। सिविल इंजीनियर एक साइट में रहेगा, अगर आप यूजुअली आप पूछो सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक साइट में रहते हैं, पूरा का पूरा वो लोग सुपरवाइज करते हैं, राइट फ्रॉम इनिशियल जहां पे आप प्लानिंग करते हो, वहां से लेके अगर आप बिल्डिंग्स, रोड, डैम, ब्रिजेस जो भी बना रहे हो, उस पूरे का पूरा का वो मॉनिटरिंग करते हैं जब तक वो पूरा प्रॉपर्ली बिल्ड ना हो जाए। अगर आपने वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखा है, वो प्रोजेक्ट एलएनटी को मिला था, एलएनटी ईसीसी को, तो वहां पे एक पूरी की पूरी टीम थी जो कि उस साइट में थी, जिसे सिविल इंजीनियर्स कहा था, और वो लोग पूरा टाइम देख रहे थे कि किस तरीके से डिजाइनिंग हो रही है, किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से पूरा काम हो रहा है ताकि वो फाइनल बिल्डिंग बन सके। उसी में एक आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं अगर होंगे, तो आर्किटेक्चर जो है मोस्टली आपके घर, फैक्ट्रीज या जो भी है उसका डिजाइनिंग या प्लानिंग करते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है आपकी म्यूजियम्स हो गए या स्काई स्क्रेपर्स हो गए, इन सब के लिए आर्किटेक्चर यूज होता है। लेकिन सिविल इंजीनियर्स जो है आपके बड़ी बड़ी चीजें, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, एंड टू एंड, ये काम सिविल इंजीनियर्स करते हैं। ओके, थैंक यू सर। अनदर क्विक क्वेश्चन फ्रॉम ओजस्वी शर्मा। उन्होंने पूछा है, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज व्हाइल डूइंग एमबीबीएस? अच्छा, ओके, तो आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आपको सिविल सर्विसेज करनी है। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सिविल सर्विसेज को आप करियर या सिविल सर्विसेज को आप जॉब मत मानिए। सिविल सर्विसेज एक ड्यूटी है, और जब ड्यूटी की बात आती है तो आपको उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होती है जितनी आप और चीजें जिसको आप ड्यूटी मानते हो, जिसको आप उतनी रिस्पेक्ट देते हो। अगर आप सुबह उठ के रोज पूजा करते हैं, मैं जस्ट मान रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर तो आप वैसे हो जो रोज सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, जो आप ड्यूटी मानते हैं, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि पूजा के टाइम पे आप और चीजें भी कर रहे हो साथ में? ऐसा आप नहीं करते हैं ना। तो वैसे ही जब आप इसकी तैयारी करो तो आप इसको पूरे डेडिकेशन के साथ करो। बहुत लोग करते हैं साथ में, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। आप अगर मुझसे पूछोगे, मैंने खुद भी तैयारी की थी सिविल सर्विसेज की अपने जॉब के साथ। मैं रैंडमली उठ जाता था, कई बार सुबह 5 बजे उठ के जाता था, 5 से लेके सुबह 7, 7:30, 8 बजे तक पढ़ता था, फिर ऑफिस के लिए जाता था, ऑफिस से वापस आता था। लेकिन मुझे इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि मैं उस एग्जाम को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा हूँ। तो अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है, बट मेरा आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट होगा कि इसको आप एज ए ड्यूटी की तरह हमेशा लीजिए। इसको आप वो मत लीजिए कि आपका ये एक जस्ट जॉब है जो आपको करना है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर जाके कई बार वो लोग फिर उस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ठीक है, इनिशियली हर एक के पास मोटिवेशन होता है कि हमें सोसाइटी में चेंज लाना है, हमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, जहां से आए हैं उस चीज को पूरा अपलिफ्ट करना है जिस भी पोजीशन में है। बट ये मोटिवेशन
तभी आपके दिमाग में रहेगा अगर आपने इस चीज के लिए उतनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के लिए तैयारी की। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिसने भी पूछा है, आई होप कि आप मुझे गलत प्रूफ कर दें, आप बताएं कि मैं एमबीबीएस के साथ भी कर सकता हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट डिफीट। बट मेरा सिर्फ आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि उसको डोंट ट्रीट इट एज अ जॉब, डोंट ट्रीट इट एज अ कि बस मुझे एक जॉब करना है 9 to 5 या वो। आप बोले कि मुझे एक ड्यूटी करनी है और वो ड्यूटी मैं अच्छे से करूँ। ठीक है? Excellent answer, Abhinesh sir. Another very common question that comes up is what are the areas of data science analytics? And this question I'm seeing it's a unique question from Bindu Mol PG. From B2 Mall? Her name is Bindu Mol. Full name is not Okay. given. Yeah. What are the areas of data science or analytics? Okay, Very so you are asking about areas of data science and analytics. ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और डेटा साइंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें बता देते हैं कि अगर हम डेटा साइंस ही बात करें तो डेटा साइंस में कौन कौन सी चीजें, जैसे मैंने आपको मशीन लर्निंग बोला था कि एक मशीन लर्निंग होता है, और इन सब सब्जेक्ट्स के लिए आपका जो बेस है वो स्टैटिस्टिक्स है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपको डेटा साइंस करना है, डेटा एनालिटिक्स करना है या जो भी करना है, तो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप विजुअलाइज कर सको डेटा को। कई बार क्या होता है कि आपको डेटा मिल जाता है, मैं हो सकता है कि अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब इस मीटिंग के बेसिस पे मुझसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि इस पूरी मीटिंग में कौन ऐसे बच्चे थे जो एकदम अटेंटिव थे, जिन्होंने आपका सेशन बहुत अच्छे से दिया, आप मुझे वो पॉइंट्स बता दीजिए कि बस ये विजुअलाइज करके दे दीजिए। ये एक एग्जाम्पल ऑफ डेटा साइंस ही मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सबसे ले लिया कि आप मुझे डेटाबेस दे दीजिए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना कैमरा खोल के रखा था, कितने बच्चे हैं जो मुझे देख रहे थे, आई टू आई कांटेक्ट हो रहा था, कितने बच्चे हैं जब मैंने उनको वीडियो या कुछ भी दिखाया तो मुझे एक रिएक्शन मिला। ये सारे बच्चे वो हैं जिनका मैं डेटा विजुअलाइज कर सकता हूँ। ये एक पोर्शन हो गया आपका डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस में। मार्केट रिसर्च जो होती है आपकी, बहुत ज्यादा आजकल मार्केट रिसर्च होती है कि किसको क्या चीज बेचनी चाहिए। सपोज अगर आप मुझे बोलो कि यहाँ पे अभी में से ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कोई कुछ खरीदना है सामान, सपोज आपको ये खरीदना है, आप कह सकते हो कि नूडल्स खरीदने या जो भी खरीदना है, अगर आप में से किसी को पसंद है, कुछ भी खाने का सामान खरीदना है या चॉकलेट खरीदनी है, चलो एक सिंपल से चॉकलेट खरीदनी है, कैडबरी या कौन सी खरीदनी है, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले कंपनीज देखेंगी कि अच्छा हम सारे बच्चे जो हैं उनका एक डेटा पॉइंट लेते हैं कि ये लोग कौन सी चॉकलेट ज्यादा लेते हैं, ये कैडबरी ज्यादा ले रहे हैं या फिर मिल्क चॉकलेट ज्यादा ले रहे हैं या फिर डार्क चॉकलेट ज्यादा ले रहे हैं। इसके बेसिस पे ये लोग एक एनालिसिस करेंगे कि हाँ, हमें इससे पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है, तो फिर कंपनीज अपना डार्क चॉकलेट एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को जो है आप डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है। इसमें आगे और बहुत ज्यादा डिटेल्स भी होती हैं, जैसे जैसे आप जाओगे आपको मैं समझा पाऊंगा कि क्या होता है, कि किस तरीके से ये यूज होता है। बट अभी बेसिक लेवल पे आप इतना मान सकते हो कि इसे हम डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस बोलते हैं। थैंक यू सर। और हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल क्वेश्चन है ये। सर, कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो उनके फैमिली के पास सपोर्ट नहीं होता और किसी के पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, तो सर ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए सर? और एक सिमिलर क्वेश्चन है, माय फैमिली कैन नॉट गिव मनी फॉर माय स्टडी, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10+2 इन मेडिकल? Okay. Can you I help think students sir with your answer? Okay, so I'll do one thing. मैं दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही आंसर करूंगा, ठीक है। सी मेरा एक इंटेंट था आखिरी वीडियो दिखाने का। आई गेस जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस पूछा है, मे बी शायद उस वीडियो को उन लोगों ने साइड में रख के ये क्वेश्चन पूछा होगा, और उस पर्सन ने सिंपली एक चीज बोली थी, बिकॉज आई वॉज पुअर आई हैड नथिंग टू लूज, बिकॉज आई हैड द लग्जरी of coming from a poverty background या coming from a poor society, I had nothing to lose. तो मेरा आपसे ये है कि आपके पास तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा करने की। रेदर जिनके पास सारे बेनिफिट्स सब कुछ दिए जाते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि अरे हमारे पास तो ऑलरेडी ये लग्जरीज हैं, क्या हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए। रेदर आपके में तो इनग्रेन्ड होगा कि हमारे पास तो अब कुछ हारने को बचा ही नहीं है, सब कुछ तो चला गया है, अब सिर्फ जो बचा है वो है मेहनत।
और हमारा डेडिकेशन। और ट्रस्ट में मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे जो हैं खुद की मेहनत से, आप खुद देख लीजिए, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। आप मुझसे पूछोगे, जब मैं तैयारी कर रहा था मेरी दीवार में ना बड़े बड़े कोट्स लगे हुए थे, मोटिवेशनल कोट्स, अच्छे अच्छे इंस्पिरेशनल लीडर्स की फोटो थी। तो क्या बनना है मुझे, मैंने खुद में, अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने इवन एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी कोट रखा हुआ था, उनकी बुक भी पढ़ी थी। अगर ये लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। आप अपने आप को अलग मत समझिए, इन लोगों से आप इंस्पिरेशन लीजिए। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली क्या स्ट्रगल होती है, बट मैं आपको ये बोल सकता हूं कि लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। ये दिमाग में क्वेश्चंस मत आने दीजिए, यही क्वेश्चंस की वजह से हम अपने आप को स्टॉप करते हैं कुछ एक्सीड करने में, कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस सुपरसीड कर दे, वो कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हमने अपने दिमाग में वो बैरियर्स डाले। तो ऐसा मत सोचिए, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपने ऑलरेडी एक स्टेप क्लियर कर दिया। मैंने आपको सबसे पहले चैलेंज में बोला था टू बी इन टॉप 1 to 5%, और इस बात को मैम भी मेरे साथ सेकंड करेंगी कि यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं वो उस टॉप 1 to 5% वाले ही बच्चे हैं। तो वो चीज आप ऑलरेडी दिखा चुके हो, अब बस एक कदम और है, और वो है आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन। आप ये सब चीजें मत आने दीजिए, ठीक है? थैंक यू सर, आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। सिमिलर लाइन पे एक क्वेश्चन था कि हम अक्सर देखते हैं कि जेईई एडवांस्ड या नीट के टॉपर्स आकाश या फिर और भी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करते हैं। इससे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नहीं जा सकते तो उनका हौसला कम हो जाता है, तो क्या करे? शी इज फ्रॉम JNV तहरी गढ़वाल। पर इनका आंसर भी आपने आपके आंसर पहले आंसर से दे दिया होगा, इनको भी आंसर मिल चुका होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है इसके कंक्लूड करने से पहले। ओके, This is a question that has come in the YouTube channel. Sir, how much do we have to score to get in AIMS? This is from Ashbel Sangma. अच्छा, आपको एम्स में अगर जाना है तो आपको कितना स्कोर करना होगा? Yes. ओके, सी मैं अगर आपको जस्ट मार्क्स बताऊं तो आपके रफली अराउंड 500 से ऊपर अगर आपके आ जाते हैं तो आपका नीट में अच्छे कॉलेजेस में आ सकता है। अगर आपका 500 के ऊपर आ गया तो आपको नीट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एम्स की बात करें कि आपने अगर टारगेट किया है कि आपको सिर्फ एम्स में ही जाना है, तो उसके लिए रफली अराउंड 650 के ऊपर स्कोर चाहिए होता है। दैट ऑल्सो वेरीज। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके बेसिस पे कट ऑफ डिफाइंड होता है कि हर एक का कट ऑफ कितना होगा, क्या होगा। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल मैं आपको बता देता हूँ कि कितने परसेंटाइल आपको क्वेश्चन सही करने होंगे। सो रफली अगर आपने अपने सपोज 60 परसेंटाइल जितने क्वेश्चन है, 65 परसेंटाइल जितने क्वेश्चन सही कर दिए, सो देन यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग इनटू एम्स। तो वैसा आप टारगेट कीजिए। इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स एंड ऑल, देखिए जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ना कई बार वेरी भी हो जाता है। हो सकता है मैं आपको बोलूँ 600 650 के ऊपर अगर आपका स्कोर आ गया तो आपका वो मिल जाएगा। बट हो सकता है जब आप देने जाओ तो और कंपटीशन बढ़ जाए, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा चेंज हो जाए, पेपर इजी आ जाए। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप हमेशा पुरानी चीजों को देखिए कि कैसा ट्रेंड रहा है, क्या स्टेटिस्टिक्स रहे, और उसके बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन डिफाइन कीजिए। और रेदर देन दैट इफ आई से, तो आपको ये चीजों में तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसी तैयारी करूं कि मुझे ये सोचना ही ना पड़े कि मुझे कितने नंबर लाने हैं। हमारे जब भी बच्चों से बात होती है या हमसे जो भी डिस्कशन करते हैं, हम बोलते हैं ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कल को पैटर्न बदल जाए, हो सकता है मैंने आपको 600 नंबर बोले हैं, हो सकता है कि पैटर्न ही चेंज हो गया, 500 मार्क्स का पेपर हो गया। तो क्या आप इन चीजों पे अपनी प्रिपरेशन रिलाई करना चाहते हैं कि रेदर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने फंडामेंटल्स, अपने कंसेप्चुअल्स के बेसिस पे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं? ये डिसीजन आपका है और मेरे को इसका जवाब नहीं चाहिए। ये डिसीजन आप देखिए, आपको क्या देखना है। बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस होना है कि अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपको इवेंचुअली आउटकम मिल जाए। ठीक है? Wonderful, Abhinesh sir. So we will conclude the question answer session here.
जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है चैट बॉक्स पे आए हैं या यूट्यूब चैनल के चैट बॉक्स पे आई हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम कंपाइल करके हम सर को फॉरवर्ड कर देंगे। अभिनेश सर उनको आंसर कर लेंगे अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से, और आप हमें वापस भेज दीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स बेनिफिट हो जाए आपके आंसर से। Okay, ma'am. Wonderful, ma'am. Thank you, everyone. I would again like to, perhaps because we are almost at the end of our session, पूरा ही खत्म हो गया है, सारे discussions हो गए हैं. So I hope I was able to, you can say, wake up few souls, जो भी हैं, जो भी थोड़े से क्लियर नहीं थे. अगर लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम और कंफ्यूज हो गए, तो then also I am happy कि एटलीस्ट कुछ तो मूवमेंट हुआ. अगर बच्चे ये बोले कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तब मेरे लिए इशू है. या तो बोल दें कि हमें बहुत अच्छा लगा, या बोल दें कि हम और कंफ्यूज हो गए. इन बोथ द केसेस आई विल बी प्रेजेंट. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंटायर टीम फॉर सच अ वंडरफुल कोऑर्डिनेशन. बहुत एफर्ट्स दिखाई हैं, की वजह से जो है we are able to actually have this wonderful and have wonderful interaction with students. Thank you. Thank you, sir, for the wonderful session. And I'll request Sanjida to propose the vote of thanks. Thank you, Mini ma'am. Definitely, Abhinesh sir, from the likes and cheer that you have received, if you can see on the screen from all the students, your session was wonderful. We all liked it. आपने कहा कि अपने हुनर को देखना चाहिए, आपको सिर्फ जॉब नहीं एक करियर बनाना है, और सक्सेस इज इजी, लेट अस कीप इट सिंपल. वंडरफुल simple lines, and I hope all the students have been benefited by your session. So with this, I, Sanjida Tasmin Ali, Project Associate of Vigyan Jyoti, would like to propose a vote of thanks to everyone. First of all, to Abhinesh sir for his wonderful session, for his time. And there is another session coming up at 12 o'clock. We hardly have 15 minutes left for that. So quickly, I would like to also thank the entire Vigyan Jyoti team, Dr. Meenu Singh ma'am, for taking the initiative of conducting this session. And Gopal Krishna sir for his wonderful words of motivation to our students. The entire team of Vigyan Jyoti, DST and Navodaya Vidyalaya Samiti who have supported us in conducting this session. Thank you all teachers of JNV and principals of JNV who have communicated this information of career counseling to the students. Without their support and without their help, this would not have been possible. Thank you all. Wish you all a great afternoon ahead. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.